what they will do is they will link the radiation, thermal radiation with the wavelength of the EM wave. So we have so far not mentioned the wavelength content of a thermal radiation. The important thing about thermal radiation at any temperature is that it is not of one wavelength, but has continuous spectrum from the small to long wavelength. The अच्छा. energy content of radiation, however, varies for different wavelengths. So every wavelength has its own energy content. Figure 10.18 gives the experimental curves for radiation energy per unit area, per unit wavelength. Very important. Emitted by a black body versus wavelength for different temperatures. So you can see the graph. So this is lamp 2000 Kelvin, and this is emitting 40,000 Armstrong. And you can see the energy content. ये आर्क है, ये सनलाइट 6000 केल्विन पे रेंज है उसकी. देयर इज अ रेंज. अच्छा. The important thing is that any temperature, it is not one wavelength, but continuous spectrum from small to long wavelengths. और हर वेवलेंथ का अपना एनर्जी कंटेंट होता है. सो अपना वेवलेंथ ये जो डिस्कवरी थी या पढ़ाई थी, ये उसी ने करी. वेन लिंकिंग द एनर्जी एंड so when a body is heated, all radiations having uh, from 0 to infinity are emitted. Oh. इतना डिटेल इन्होंने दिया ही नहीं है. Okay, let's come to this. All right, let's have some understanding around temperature and all that. तो वो होता है ना, जैसे लोहा देखा है, हैव यू सीन आयरन गेटिंग रेड कलर्ड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, Yes. राइट? So the maximum emission of radiation, the if you study the wavelength, what you will find is that the wavelengths, क्योंकि एनसीईआरटी ने पता नहीं कैसे मतलब बना दिया, ठीक है, होगा कुछ. The wavelengths corresponding to maximum emission. अच्छा, नीचे दिया होगा वैसे. The wavelengths that correspond to maximum emission of radiations shifts from longer wavelength to shorter wavelength.
as the temperature increases. Due to this, the color of the body changing. As it starts emitting more and more radiation, its color changes. In fact, when heater, for example, there is no color. Infrared waves होती हैं basically. Or this is one point, that maximum emission of radiation shifts from larger wavelength to shorter wavelength as the temperature increases. And so radiations of longer wavelengths. Okay. Radiations of longer wavelengths are predominantly at lower temperatures. The lower the temperature, higher the wavelength being emitted. Okay. और यहाँ पे due to this, the color keeps on changing. The color of body appears to be changing. Appears to be changing. Okay, so wavelength and whatever radiation is coming out, that energy per unit area per wavelength, okay, is linked to temperature. Shorter wavelengths correspond to maximum emission, and smaller, at lower temperatures, you will find longer wavelengths. Also, what happens is when radiations fall on anything, there are so radiations, EM waves fall. Some part of the EM wave actually gets reflected. Okay, it's an electromagnetic wave radiation, and so thermal radiation falls on a body. A part of it can get absorbed also. So a part of it can get absorbed. Absorb bhi ho jata hai. So if you send Q, the total, then some will get reflected and some will get absorbed. Okay, and some will also get through the body, so which means transmitted. If you see, some reflectors are used. Reflector होते हैं और कुछ transmitters होते हैं. So although we have not studied Blackbody per se, but the total, there is a term called as absorbing power. Okay, absorbing power. Absorbing power. Absorbing power is defined as A, the fraction of the heat which is absorbed of the total. So this becomes the absorbing power. And इसको दूसरा नाम देते हैं absorptance, जैसे capacitance. Then there is something called as reflectance or reflecting power. So there is something called as reflecting power. R is equal to QR upon Q. Okay. So this is again the fraction of the heat which is reflected. And then there is something called as transmittance. So this is reflectance
reflectance. Then there is something called as transmitting power. Okay, so this is transmittance. Nothing. 20% of the EM wave got transmitted. So T, the transmission is given by 20 by 100, the total. So obviously the sum of all this has to be 100% or 1. And then the ratio, fraction जो भी आएगा 1/5 plus 2/5 plus 3/5. So A plus T plus R is always equal to 1. And why we study this is because if we have to define a perfect reflector, okay, something which is capable of doing a perfect reflection, a material which is a perfect reflector, okay, will have R is equal to 1. And if there is a material which is a perfectly black body, it's हमने word use करा है कहीं पे black body, okay, perfectly black body, then it will absorb all the radiation. A, a black body is something which is, if you give it some radiation, will also absorb the radiation completely. उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं. जनरली ऐसी मतलब बनाना बहुत मुश्किल है कि वो बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर ले सब कुछ, रिफ्लेक्ट भी ना करे और ट्रांसमिट भी ना करे. ब्लैक होल. ब्लैक होल इज मोर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट. अच्छा. Okay, where there's so much gravity that everything is absorbed. Black body is different. It is, but black hole also is capable of absorbing all the radiation also. वो भी ले लेता है वो. Yeah, T is equal to 1, and this is a perfect transmitter. So एक तरह से black body simple absorbing. So if you are a perfect transmitter, for example, your T is equal, T is, for example, if your T is equal to 0, you don't transmit anything through you. There is no transmission. So your R plus A. So if you're a good reflector, then you're a bad absorber. Higher is your reflection, you're a bad absorber. Okay. So point is, तो ये आवाज कट रही है आपकी. any radiation, any radiation, how is it now? Slightly better? बीच बीच में कट रही है आपकी. अब ठीक हो गया लगता है. हम्म. हमको बोलने में भी अभी बात कर रहा हूँ. Okay, so I think ये जो veins displacement slightly shaded.
पर आवाज बड़ी कट रही है आपकी। आई थिंक बीच में बंद हो गया वो। हाँ। मेरा जूम ही बंद हो गया। सर आपके साइड से अब नेटवर्क। आवाज आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी थोड़ी अमर कट रही है हाँ। आपकी जी। वेट, लेट मी शिफ्ट इट टू द अदर नेटवर्क। बट आई एम ऑन टाटा, अच्छी चल रही है। स्लाइटली बेटर। स्लाइडली। अब फुली स्टेबल हो जाएगा। ये अगर कॉपी हो गया तो आ जाएगा, मतलब आया देखो। हाँ आ तो गए। नेटवर्क ठीक हो गया। यू कैन सी दैट द इंटेंसिटी इज हाई, लो, एट लोअर वेवलेंथ्स, वेरी हाई। ये वाली इंटेंसिटी देखो, ये वेवलेंथ है। और ये 12,000 केल्विन का स्पेक्ट्रम देखो कितना सारा है। 12,000 केल्विन पे कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज एमिटिंग फ्रॉम लो, हाई वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ आ रही है। इनफैक्ट what is said is that when a body is heated, all radiations having wavelength from 0 to infinity are emitted। और ये जीरो ओके। आ रही है, ये देखो जीरो। हम्म। और प्रोबेबली कितनी सारी वेवलेंथ आ गई है, जीरो से शुरू हो रही है और यहाँ तक वेवलेंथ चल रही है, 30,000 तक आ गई है, 12,000 केल्विन पे। और टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी एमिशन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। अपने 12,000 केल्विन तक किसी चीज को आप ले गए तो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम बना ना आपका, देखो कितनी सारी वेवलेंथ निकल रही है। जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो कंडेला में मेजर की जाती है। दिस इज नॉट दैट, दैट इज कॉल्ड एज अच्छा। फ्लक्स। फ्लक्स। रोशनी होती है ना, वो रोशनी, ये एनर्जी कंटेंट है। अच्छा मुझे लगा कि ये आई थिंक यू आर लाइट रेफरिंग की। टू दैट रोशनी की पावर, हाँ। है हाँ ना? जी हाँ जी। यू आर रेफरिंग टू द फ्लक्स ऑफ द लाइट। यस। जैसे मैग्नेट का फ्लक्स होता है, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू फ्लक्स ऑफ द लाइट, विच इज यस सर। रोशनी। हाँ जी हाँ जी। कितनी रोशनी होगी चारों दिस इज नॉट दैट, हीट कंटेंट। ये गर, गर्मी है, गर्मी, हीट। So there is a sort black discussion, but this is the way I think I got disconnected। यस। ओके नेटवर्क खराब है लगता है। चेंज कर लिया मैंने।
नेटवर्क तो यार बड़ा ही आज सुबह 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 शायद रिबूट नहीं करा इसलिए हो गया. हम्म, So if you have bodies which are so far away from you, right, stars and all that, and you come to know what is the wavelength they are sending to you, उनकी लाइट तो पहुंच जाती है ना हमारे तक. हाँ. So we can estimate their temperatures using this. So look at this. So notice that the wavelength for which energy is the maximum decreases with the increasing temperature. शॉर्टर वेवलेंथ होती जाती है जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है. सो ये टेम्परेचर देखो 12,000 है. शॉर्टर वेवलेंथ पे हाईएस्ट पॉइंट आया है. 6,000 केल्विन पे वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है. और 3,000 केल्विन पे भी बढ़ गई. सो इस बेसिकली द Wayne's displacement law was this. Okay, the maximum wavelength in the spectrum at a given temperature, the product is constant. This law explains why the color of the piece of iron heated in a hot flame becomes dull red, then reddish yellow. As the temperature is increasing, the wavelength is decreasing. हम्म. Right? And it is useful for estimating the surface temperature of the celestial bodies. मून सन ओके. एंड स्टार किसी का भी आप टेम्परेचर ले लो. आपको पता है वहां से जो वेवलेंथ आ रही हैं. यू टेक द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फ्रॉम द स्पेक्ट्रम. जब भी एक वेवलेंथ नहीं आती है सूरज से. सूरज से बहुत सारी वेवलेंथ आती है. मैक्सिमम पकड़ो. इस फॉर्मूले के अंदर फिट करो. यू कैन एस्टिमेट द द वेन्स कांस्टेंट. द प्रोडक्ट इज दिस. ये वेन्स कांस्टेंट का प्रोडक्ट है ये वाला. तो लैम्डा एम टी निकाल सकते हो आप. लैम्डा एम पूरा स्पेक्ट्रम आता है. वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स टू create a spectrum of wavelength that comes from a celestial स्पेक्ट्रोस्कोपी. body. हाँ मतलब वही है स्पेक्ट्रोस्कोपी. समथिंग. हाँ अच्छा. होती है वो. That helps you create a spectrum of the wavelength which is coming from these bodies. Light from the moon is found to have a maximum intensity near wavelength on 14. By Wayne's law, the surface of the moon is estimated to a temperature of solar radiations has a maximum wavelength of this. This corresponds to 6,060. But remember, this is the surface temperature, not the interior. The most significant part of a radiation is that they are universal. They depend only on the temperature and not on the size, shape, or material of the black body. Attempts to explain black body radiation at spurred the quantum revolution, as you will learn later. Energy can be transferred by radiation over large distances without a medium. The total electromagnetic energy radiated by at a temperature T is proportional to its size. Now he's talking about the total energy emitted by a body at a temperature is proportional to its size, its ability to radiate. Okay, so emissivity is a property called as the ability to radiate. You may not have ability to radiate. So how do you measure someone's ability to radiate? Emissivity. तो कई चीजों पे डिपेंडेंट है. उसके साइज पे, एरिया पे, उसके टेम्परेचर पे ऑब्वियसली, कि कितनी वो एनर्जी फेंकेगा. एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द emissivity. दिस इज दिस इज H is equal to A sigma T4. द तो इसने एक ही स्ट्रोक के अंदर he has covered Stefan-Boltzmann law also. Okay, so this formula, area of the body, which is essentially size, or
where A is the area, T is the absolute temperature of the body. This relation obtained experimentally by Stefan and later proved by Boltzmann became the Stefan-Boltzmann law. Okay, and the constant sigma ये emissivity है. So the radiation emitted or the heat which is emitted, radiated by the body is dependent on its temperature to the power 4. It is dependent on its size and it depends on its capability to radiate, emissivity. Okay, so this is the constant of proportionality and is known as the Stefan-Boltzmann constant. और tungsten के लिए look at tungsten. Tungsten has a great capability to emit radiation. E is equal to 0.4. Okay, so if you have a tungsten bulb lamp, and the temperature is 3000 and the surface area is this much, and the emissivity, Stefan-Boltzmann constant, you can apply this formula to find out how much heat per second is getting emitted from it. So this is the rate at which the radiation is getting emitted. The energy content per second will come out. So 60 watts. So at a microscopic level, it is all about size, temperature, and the property to radiate, emissivity. This law is called as Stefan-Boltzmann law. Okay, so slightly there is a variation in this because the actual heat which is emitted is also dependent on the surrounding temperature. तो थोड़ी सी adjustment है इसके अंदर. अगर आपको surrounding temperature थोड़ा substantial है, a body at temperature T with surrounding and emits as well as receives. तो receive भी करता है वो, because दूसरी body भी उसको वो देती है radiation. तो जो net emission है वो ये हो जाती है उसकी. Okay, so it's a gain versus minus loss, और let's say loss minus gain. Gain भी कर रहे हो आप क्योंकि सराउंडिंग से आपको मिल भी रही है हीट. सो यू एडजस्ट द फॉर्मूला एंड यू राइट दिस सराउंडिंग का T4 वही स्टीफन बोल्ट्जमैन से जो रेडिएशन आपको मिल रही है. सो सब्ट्रैक्ट इट एंड एडजस्ट इट. समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? So in reality, there is a bulb which is having a size, emissivity, and a temperature, but that bulb also has a surrounding. So let's say this, look at this. So some material having emissivity of E, area A, and surrounding temperature so and so. So let us estimate the heat radiated by our body. Suppose the total surface area of a person's body is 1.9 meter square and room temperature is 22 degree. हमारा टेम्परेचर 37, अभी सर्दी में यही होता है. एक्सटर्नल टेम्परेचर है 16, 22, 14, 13, 3. द स्किन टेम्परेचर में भी 28 डिग्रीज. हमारा इंटरनल टेम्परेचर 37 है, स्किन का टेम्परेचर 28 है. हमारी स्किन की एमिसिटिविटी देखो वो बेटा 0.97 फॉर द रेलेवेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. द रेट ऑफ हीट लॉस. हमारी बॉडी भी लुमिनस होती है. ल्यूमिनस मींस उजाला देने वाली. हाँ, ये देखो, दिस इज 301, 273 प्लस 28 हमारी बॉडी, प्लस इट इज गेनिंग ऑल्सो. सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों को, which is 66.4 watts, which is more than half the rate of energy production by the body. So we are losing this much heat to atmosphere and we are producing this much. To prevent this heat loss effectively, modern Arctic clothing has an additional thin, shiny metallic layer next to the skin
विच रिफ्लेक्ट्स द बॉडी रेडिएशन। तो बॉडी की जो निकल रही होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस। दिस जैकेट कॉस्ट यू अराउंड 5.5 लाख रुपीज इन अमेरिका। मिशिगन वगैरह जहाँ पे बिकती हैं, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम वेदर है ना बहुत ज्यादा। हम्म। तो मतलब $10,000, $8,000 की जैकेट आती है ये। रफली अराउंड 8 लाख रुपीज। हाँ, मतलब इतनी महंगी जैकेट्स होती हैं ये। हमारी दिल्ली देसी वाली जैकेट चलती नहीं वहाँ पे, डजंट वर्क, फ्रीज जम टू जाएगा डेथ। उधर। हाँ, बंदा जम जाएगा, क्योंकि उसकी 66.4 हाफ का 120 वाट ही निकल जाएंगे उसकी बॉडी से। हम्म। तो ओके, सो लेट मी जस्ट, एक बार दिखाओगे उसकी इमेज कैसी दिखती है वो, इसकी उसकी जैकेट की, देख आर्टिक लो जैकेट। अमेजन पे, अमेजन पे बिकती है, खरीद लो। अमेज़न में इतनी वाइट, महंगी जैकेट, जैकेट मैं देता हूँ। सब मिलता है अमेरिका में यार, जैकेट वैकेट। मेरे कजन की बेटी ने खरीदी है अभी मिशिगन में, वही पहन के जाते हैं वो, क्योंकि टेम्परेचर इज अराउंड -30, -40 इन मिशिगन। हम तो भैया मस्त बैठे हुए हैं, और हमारी इसी में वाट है। 7 lakhs। कितने की है? 7 lakhs। हाँ, आई टोल्ड यू इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कर कितने दिन में आ रही है? तो एक सस्ती वाली है, ये सस्ती है अभी, शाबाश। 5,000 की। अच्छा, $5,000। 5,000 रुपये। अच्छा, इंडिया में? अमेजोन पे। नकली माल। मतलब 120 वॉट्स की हीट जनरेट होती है। हमारी बॉडी की तो बल्ब एवरी में कितनी सेकेंड। होती है? खरीद लो, 3 40 वाट के बल्ब हैं। 40 वॉट के तो ज्यादा एनर्जी देते हैं बल्ब से, मतलब। हाथ नहीं लगा सकते, इतने गर्म होते हैं। सरफेस नहीं एरिया फिर बहुत तो कम होता है ना। हमारी बॉडी का सरफेस एरिया देखो, और बल्ब का ज्यादा सरफेस होता है एरिया तभी देखो हम भाई। बल्ब की तरह गर्म नहीं हो जाते। हाँ, अच्छा। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है भाई, बहुत फर्क है। बल्ब कितना सा होता है, शीशे का होता है साथ में। इंसुलेशन तो करनी है खैर, बिजली है अंदर, टंगस्टन को तो हाथ नहीं लगा सकते हम। ये चीज मुझे आज पता चली कि हम 120 वॉट की हीट जनरेट करते हैं। काफी ज्यादा है 120 वॉट भी। यस भाई, 120 जूल्स पर सेकेंड। पर सेकंड। और क्या, वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड ही तो होता है। लो जी। सर क्या हम अपनी बॉडी से किसी बल्ब को जला सकते हैं क्या वैसे? नहीं नहीं, वी डोंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा। उसके लिए तो ऊपर। यू नीड मैग्नेट, एंड मैग्नेट को काटने के लिए वायर, आर्मेचर, जनरेटर, जो पढ़ा होगा 10th में थोड़ा सा। जनरेट तक नहीं मैग्नेटिक पड़ा था हम फील्ड, लोगों ने। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हम्म, काटना पड़ता है उसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को। हमने वो पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस। सोलेनॉइड। हाँ, द डिवाइस, फाइंड द टेम्परेचर एट विच अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट सो एंड सो। सो सीधा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का क्वेश्चन है। सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। ए ई एमिसिटिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 1, तो ई इक्वल टू 1 लिया और आंसर हम्म। ब्लैक बॉडी है। 1 × 5.67। ब्लैक बॉडी सारी रेडिएशंस को भी एमिट करती है, और सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेती है।
कैलकुलेट द राइटिंग टेम्परेचर। एरिया क्या दे रखा है? एरिया कुछ दे रखा है हमें? एरिया 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 नहीं, टेम्परेचर निकालना है। हाँ। एरिया नहीं दिया हुआ यार, पर मीटर स्क्वायर सिग्मा दिया हुआ है ब्लैक बॉडी का। E इज इक्वल टू सिग्मा ए, पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, एरिया तो नहीं दिया यार, उसके बिना कैसे सॉल्व होगा। एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पहले तो वॉट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो ई को। ई दिया हुआ है। नहीं रख सकते। एरिया चाहिए भी नहीं है शायद। हम्म, पर यूनिट एरिया दिया हुआ है ना। हाँ। तो 5.67 और 5.67 कट जाएंगे। दिस, द what you're calculating on the left hand side is called as the emissive power, the rate of emission of radiant energy per unit area। हाँ जी। ये आ गया टेम्परेचर चेंज। ठीक है, सराउंडिंग सराउंडिंग है। ये एब्सोल्यूट पूछा है इसने ब्लैक बॉडी का, आई थिंक सराउंडिंग से कुछ लॉस या वो गेन का चक्कर ही नहीं। पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें सराउंडिंग का है, एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा सिग्मा T4 जो बॉडी है उससे जो रेडिएशन हो रही है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। वो तो तब लगाते हैं TS जब यू आर गेनिंग ऑल्सो ना फ्रॉम समवन। टी रेस्ट पावर 4 जिस 10 रेस्ट पावर 2 केल्विन, 100 केल्विन। हाँ जी, 1000 आ रहा है। क्या हो गया? वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, आई होप यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू नहीं। वॉट को, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 रेज़ टू पावर 4 कर -2। दिया है। 10 रेस्ट पावर -1। अच्छा, नहीं कर रहा था वो। सिग्मा पता है वैल्यू, द स्टीफन हम्म। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है। Most bodies only emit only a fraction of the rate। 10, अब 10 आ रहा है। नहीं नहीं, समथिंग रॉन्ग। 10 क्यों आ रहा है भाई? 5.67, ये ठीक नहीं लिखा। नहीं, ये नीचे दिया कर हुआ है ना लिया था लेफ्ट, ठीक। क्यों इसको नहीं, नीचे ठीक कर। 10 रेज़ टू पावर 4 नहीं होना नहीं, चाहिए? नीचे कर लिया है, कर लिया है। -4 क्यों है? कि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, बट ये तो -2 है ना ऊपर, तो इफ आई राइट इट एज वॉट अच्छा, तो 10 रेस्ट, अब कह रहे हो कि 10 रेस्ट टू पावर 4। 4 हो जाएगा। हाँ,
ओके, तो ये हो जाएगा 10⁻12, तो 10⁻3, हम्म 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। हम्म आता तो है, वैसे मैंने देखा है। क्या आते हैं? मतलब जेई मेंस में आई हैव हम्म, सीन दैट क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दिस। स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ। ये ब्लैक ओके। बॉडी रेडिएशन मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सुनी सुनी लग रही है। हाँ, एमिशंस होती हैं वो सारी। कोई ऐसा एक्चुअली कोई मटेरियल है नहीं जो सारी एब्जॉर्ब कर ले या सब कुछ एमिट कर दे, तो ये सिर्फ ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये शायद ओके, सो मैक्स लेट्स प्लैंक ने बनाया है। ओके सो 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 दिस इज अ, एक मिनट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। आई थिंक ये दिस इज नॉट वर्किंग नाउ। सो लेट्स से यू हैव this is your copper sphere, okay, and it is kept in vacuum, and the temperature which is maintained is 300 Kelvin. Okay, so 300 Kelvin पे इसको मेंटेन करा हुआ है। दिस इज अ कॉपर स्फीयर, एंड sorry, the 300 Kelvin is the temperature of the chamber, जो चेम्बर है। ओके, एंड द स्फीयर इज इनसाइड, तो ये स्फीयर है। ये छोटा सा स्फीयर एक चेम्बर के अंदर है, मतलब इसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है दैट इज 300 केल्विन। चेम्बर है कोई ये, ओके, एंड वैक्यूम है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और जो वो है स्फीयर खुद है, उसको बिजली की मदद से 500 केल्विन पे रखा हुआ है। हीट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी IR स्क्वायर, and it is maintained at 500 Kelvin. Okay. Now, while doing so, so the so copper sphere is at 500 Kelvin. Sorry, and the surrounding temperature is 300 Kelvin. To maintain the temperature of the copper sphere, what you're doing is you are supplying a power of 210 watts to it.
ठीक है। 210 वॉट आपको लग रहे हैं इसका टेम्परेचर मेंटेन करने में। और अब आपने क्या करा, आपने कॉपर का जो वो है सरफेस, उसको ब्लैकेंड कर दिया, मतलब यू कन्वर्टेड इनटू अ, you blackened it. So earlier it was not blackened. That means its E was not equal to 1, but now you have blackened it. That means you have converted into a perfectly black body. So it has become a black body now. Earlier it was not a black body. It had some emissivity of its own. Now the question is, once you blackened it, now to maintain 500 Kelvin temperature, okay, you need 700 watts of एनर्जी स्फीयर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जो पहले 500 था, अब आपने उसको ब्लैक एंड कर दिया है, सो यू हैव ब्लैक एंड इट। क्वेश्चन इज, व्हेन इट वाज नॉट ब्लैक एंड, व्हाट वाज द एमिसिविटी ऑफ कॉपर इटसेल्फ? पहले कॉपर कॉपर था, it had a tendency to radiate and all that. Now you made it completely blackened. Now you need more power to maintain the same temperature but blackened. Question is, what is the emissivity of copper? So you will apply that surrounding वाला temperature वाला formula जिसमें T surrounding subtract होता है, because your surrounding is a evacuated chamber of 300 Kelvin. Okay. So two things are happening. You as a copper are emitting the radiation, and the surrounding is also sending you the radiation. Two phenomena are happening now. As तो soon as you become a blackened uh, body, your rate of emission becomes very high, right? हम्म, So you need more power now because you're losing at very fast pace. So you need more power to maintain your temperature because you're perfectly black body. okay. So your emissivity, your power to radiate has drastically gone up the moment you became black. So you will apply the Stefan-Boltzmann formula, वो surrounding वाला जो है, जिसमें आप वो जो अ, सिग्मा कुछ दे रखा है। क्या, सिग्मा तो फिक्स्ड रहता है ना, वो सिग्मा दोनों में सेम रहेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड करने पे। You apply Stefan-Boltzmann law with surrounding, where you are able to calculate the net rate of heat emission. So the एच इक्वल्स टू। net rate, हाँ, वो ऊपर जो फॉर्मूला था यार, पिछले पेज पे, टी सराउंडिंग का भी पावर 4 का था, बाकी सब कुछ सेम ही था, हाँ। राइट? सो योर नेट रेट विल बी व्हाट? द रेट एट विच यू एमिट प्लस माइनस द रेट एट विच यू रिसीव सराउंडिंग से, दैट्स योर नेट रेट ऑफ एमिशन, राइट? मतलब एच इक्वल्स हाँ, टू सिग्मा ए इंटू टी ए रेज पावर 4 माइनस टी रेज टू पावर टी सराउंडिंग, एस रेज पावर 4। यस। The only thing is, once you are copper to start with, when you were copper, you will add an E to start with, that extra E in the formula. बाकी formula what you said is correct, right? So you said A लिखूंगा मैं, सिग्मा लिखूंगा क्योंकि मेरा तो वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और मैं T4 माइनस, कोल्ड कॉफी दे दो, टी सराउंडिंग भी लिखूंगा, ये टी कॉपर लिखूंगा, राइट? सो to maintain this net heat of radiation, how much power are you consuming? 210? ठीक है ना? 210 है जब 810 दे 500 रखा है, केल्विन 700 है दे ना रखा है। भाई, वो तो ब्लैक करने के बाद है ना। हाँ, आफ्टर अच्छा। ब्लैकनिंग, आफ्टर ब्लैकनिंग यू बिकम अ वेरी ग्रेट रेडिएटर। हम्म
this E becomes 1 Yes. and this becomes 700. So this is A and this is T copper. You want to maintain it at the same rate. सब कुछ सेम रखना है ना. हम्म लेकिन अब आपका जो वो है नेट आपको जो हीट सप्लाई करनी है वो ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि यू बिकम अ ग्रेट रेडिएटर, यू लूजिंग वेरी फास्ट. सो वन वन हम्म इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू 500 रेस टू पावर 4 माइनस इवैक्यूएटेड चेम्बर चारों तरफ वही कर रहा है, आपको दे भी रहा है रेडिएशन. तो आपका नेट जो रेट ऑफ एमिशन है, आप कहाँ से लाओगे वो पावर? कहीं से तो लानी पड़ेगी आपको पावर, वो बिजली दे रही है आपको. तो दो इक्वेशन बन गई आपकी. तो ये ई कॉपर निकल जाएगा दोनों को. इफ यू डिवाइड दीज टू नाउ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड दीज टू, व्हाट विल हैपन? डिवाइड ई आ जाएगा ना. यस 210 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू ई अपॉन 1. बाकी सब ई तो कट गया. अपॉन 0.3। हाँ, तो कॉपर का ई पता चल गया. हाँ यही कॉपर पूछा था। ब्लैकनिंग का इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए. व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्लैकन इट? ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइट. समझ में मतलब कैसे सोचना है. क्या मसला है इधर? बल्ब वाला समझ में आ गया राइट. बल्ब वाला जिसमें जी। यू हैव एरिया, यू हैव अब जैसे हम रूम में बैठे हैं, स्मॉल चेंज हम्म एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया था. जैसे यू हैव ओके सिचुएशन ऑफ अ बल्ब, सो इट्स टंगस्टन, मेड अप ऑफ टंगस्टन. वही सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा फर्क ये कर दिया कि so you have a situation where the tungsten bulb is used, the emissivity is given to be 0.35. ओके. ब्लैक बॉडी तो दूर दूर तक नहीं है ये मतलब, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा माना जाता है. एंड से इट इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 centimeter. And it is also kept in a large evacuated chamber. And the chamber walls are at 300 Kelvin. Basically room temperature, I think, right? और क्या है ये? रूम टेम्परेचर, हाँ है मतलब ना. तो 27 यू डिग्री एंड सेल्सियस है। या एंड दिस इज योर टंगस्टन बल्ब और स्फेरिकल टंगस्टन एलिमेंट जो भी कह लो, और इसका टेम्परेचर जो है 3000 केल्विन है. अब जनरली एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन करा था उन्होंने तो सीधा सिग्मा 84 लगा के खत्म कर दिया था, है ना, और एक एमिसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया था 0.35. हाँ। बट क्योंकि इफ यू नोटिस यार, फोर्थ पावर में 300 केल्विन, 3000 केल्विन और 300 का कितना फर्क है? कितना? ये मतलब दिस इज नेग्लिजिबल राइट. नेग्लिजिबल, हाँ। क्या है ये उसके सामने क्या है? भाई आप हम्म बात कर रहे हो 81 इंटू 10⁻²² हाँ जी। माइनस 81 इंटू 10⁻8. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में देखो तो कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, इफ यू हैव 8100 crore rupees and if you don't get out of that 81.81 crore rupees, how does it matter? तो इसलिए कई बार हम एक्सटर्नल जो चेम्बर होता है उसका 300 0.81 केल्विन. सी आर वैसे काफी ज्यादा होता है। क्या? 0.81 सी आर। ओ भाई, कंपेयर्ड टू दिस ना, जिसके पास 8100 करोड़ रुपए हैं उसके लिए क्या है ये? 1% भी नहीं है, 0.1% है. तो कई बार एक्सटर्नल आपको इग्नोर कर सकते हो आप, कई बार वो देखना पड़ेगा वो कितना बड़ा है. ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां 700 और 500 था वहां इग्नोर नहीं कर सकते आप. यहाँ 500 300 तो उसको जीरो मान थे ना, लेंगे छोटे क्या? छोटे वैल्यूज थे. हैं? जीरो मान लेंगे क्या? 81 हाँ इंटू बस टेन ठीक रेज है, टू सिग्मा पावर। वो लगाओ, खत्म करो और क्या. So you मैं have to see, एक्चुअली if some people want to be very accurate, they are welcome to use 300 Kelvin and do a subtraction of 300 raised to power 4. करो करो कैलकुलेट बैठ के, टेन। आपकी मर्जी है जी. दैट इज हाँ योर देखो, श्रद्धा.
10 raised to power 12 हाँ minus 10 raised to power 8. हाँ, कर लो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, मतलब हाँ. एरिया निकाल लो उसका, 4 पाई r² टंगस्टन का 0.35 है, सिग्मा मालूम है, ये डिफरेंस निकाल लो, आंसर, दैट्स अ पावर विच दिस बल्ब विल कंज्यूम। तो आपको पता चल जाएगा कितनी बिजली लेगा ये। so, हम्म. 300 वाट, इसका आंसर आ रहा है 2019 वाट। मतलब दो एसी जितनी पावर लेगा अगर इतना अपने बल्ब, इतना ऐसा बल्ब लगाया तो 2000 वाट के करीब पावर चाहिए आपको, इतना वो मेंटेन करने के लिए। ये आ जाएगा आपका. मतलब बेसिकली ये जो है ना 3000 रेस्ट पावर 4 माइनस 300 रेस्ट पावर 4 आई थिंक यू आर ये. स्ट्रक इन समथिंग वेरी एलिमेंट्री, डोंट वरी अबाउट इट, वो बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है। यू आर वरीड अबाउट दैट सब्ट्रैक्शन, कोई खास नहीं है उसके अंदर कुछ सोचने बट की। नेग्लिजिबल, मतलब उसको नेग्लिजिबल. ओके. ऑर्डर कितना फर्क है ना यार, ऑर्डर में भी तो फर्क कितना है। ऑर्डर मतलब 10 की पावर, भाई ऑर्डर उसी को तो बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम्म. ऑर्डर। बोलता. तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे मतलब क्या है? अच्छा, बट यहाँ पर अगर 400 और 300 होता तो फिर एक नोट नहीं कर सकते थे. हाँ, नहीं कर सकते, सही बोले। ओके, नाउ लेट्स कंबाइन वेन डिस्प्लेसमेंट एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन इन वन न्यूमेरिकल। ठीक है, कंबाइन करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो ठीक है, ब्लैक बॉडी है, एमिट है, तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इतना है, तो वो की वेवलेंथ भी एमिट कर रही होगी मैक्सिमम हम्म. वेन से, राइट। सो लेट्स से यू हैव अ बल्ब, so there is a bulb and the power of the bulb is that the rate at which it is emitting is 100 watts। इसका एरिया जो है दैट इज 0.25 centimeter square, and it behaves like a perfect, so it behaves like a perfect black body already given, it's a perfect black body, so इसका E जो है वो 1 है, कर रखा है ऐसे। okay, you have to find the wavelength that corresponds to the maximum in its energy distribution। मतलब वही जो वेन का जो ग्राफ आता है ऐसा, आपको ये लैम्डा एम निकालना है, which given the Stefan Boltzmann constant is equal to 5.67 into 10 raised to power minus 8 joule per meter square second Kelvin 4। ये निकालना है आपको लैम्डा एम इसका। इट्स अ फिलामेंट, 100 वाट का हीट मिल रहा है इसको, or so it is able to maintain some temperature because of that, and because of that temperature obviously bulbs give light, and you can see the light has a wavelength. So question is what is that wavelength
obviously it is emitting a spectrum, but you are worried about the maximum of it, right? You don't worry about this, ये कौन सी wavelength है, ये कौन सी, you're just worried about वो जो टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे जो हाईएस्ट है वो निकलती है वेन डिस्प्लेसमेंट से, विच इज लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, द वेन्स वैल्यू क्या थी डिस्प्लेसमेंट। वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की? ठीक है, नोट कर लेंगे यार, कुछ भी होगी। कुछ 2.89 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है। नॉट वेस्ट, टाइम वेस्ट। अच्छा, धूप आ गई बाहर। So this combines everything. It combines uh, the heat radiated. Uh, it helps you find the temperature of the body, which is radiating, and because the heat radiated is dependent on temperature to the power 4. So you can find the temperature with the help of this power, which is same as heat radiated. ठीक है। यूनिट्स देख लो ना। वेवलेंथ दे रखी है। निकालनी है, वेवलेंथ भी दे देंगे तो क्वेश्चन क्या बचा? क्वेश्चन इज टू फाइंड द वेवलेंथ, बट ओके, बिफोर यू फाइंड द टेम्परेचर। वेवलेंथ यू विल फाइंड द टी। बल्ब का टी भी तो निकालो ना, बल्ब का पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, परफेक्टली ब्लैक अच्छा। बॉडी भी दिया है। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से टी निकलेगा। हम्म। ए इंटू सिग्मा जी इंटू टी रेस्ट पावर 4। हाँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। 100 इंटू एरिया 0.25 इंटू टेन स्क्वायर रेज इंटू टू 10 रेस्ट पावर, पावर -4 राइट, इंटू 5.67। यस। छः सौ पच्चीस इंटू 567 कितना होएगा? करो कैलकुलेटर यूज। वो बता दो।
पता नहीं यार, नो क्लू। इतनी मैथ्स नहीं आती अपने को। अच्छा, 3543 into 0.7. Whatever. अब इसका फोर्थ रूट निकालना है। ये तो फंस जाओगे भाई। के लिए लॉग टेबल आना चाहिए, नहीं तो निकलेगा नहीं है। लॉग टेबल क्यों चाहिए फोर्थ रूट निकालने के लिए? अच्छा, इस खुशी में मतलब। बहुत मुश्किल हो जाएगा फोर्थ रूट निकालना। हाँ, नहीं निकलेगा ऐसे, लॉग टेबल चाहिए। नहीं बिना उसके निकालेंगे। निकल ही नहीं, निकलेगा बहुत। हिट एंड ट्रायल अरे बहुत क्या ज्यादा बात, हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो नीट जाएगा। एंड ट्रायल ही नहीं होएगा ना। कैसे? लॉन्ग डिवीजन। फोर्थ रूट के लिए है लॉन्ग डिवीजन। 10, ये पूरा नीचे आ जाएगा। वन जीरो नाइन इंटू नाइन। 2898 है आंसर। हाँ ठीक है, टू जो भी एट है। नाइन एट 989। ओके, निकल तो जाएगा। चलो छोड़ो, गोली मारो अभी तो, फिलहाल तो जस्ट चलो बस एक फंसाओ मिनट, मत। एक मिनट, इसका निकालना। 451 575। ठीक है, तुम अब ओके कितने बजे फ्री हो गए? फ्री ऐसे सर। मतलब क्लास कब खत्म होगी तुम्हारी? मैं तो अभी जा रहा हूँ। लेट्स फिनिश दिस चैप्टर नाउ। छोड़ दो इसको यार, डोंट वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलेशंस। ठीक है। ये वाला कर लेना अपने आप ही। ओके, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सिंस यू हैव टू रन। कितनी दूर जाना पड़ता है सर, आधा घंटा लगता है। पहुंचने में? हाँ, तो 12 बजे पहुंचना है मुझे उधर। वाह बेटा। ओके सो एक स्टार से, सन से सॉरी, एक स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बनी, और उसके अंदर पाया गया कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, राइट, दैट लैम्डा एम कम्स आउट टू बी फॉर द सन 4753, राइट। उसकी जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है, उसमें से देख लिया किसी ने कि अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस, 6740 केल्विन। हाँ 6050 केल्विन है, ठीक है। सॉरी। Now what they do is they study the same thing for a star, and they हम्म। find that lambda m for a star comes out to be 9506 हम्म। angstrom. Question is, what is the T of the star? हाँ, उससे हो जाएगा, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। Correct. The product has to remain constant. टू Lambda पॉइंट एट m, इंटू टेन इज पावर थ्री है ना शायद। जरूरत ही नहीं है। Why do you हाँ तो need it? इसका, ठीक है, सन से निकाल लेंगे प्रोडक्ट की हाँ वैल्यू। हाँ, which means, तो उससे जो आ जाएगी, हाँ, तो lambda फिर sun हाँ। multiply by T sun
इज इज इक्वल टू इक्वल्स टू। लैम्डा स्टार इनटू टी स्टार. हाँ। बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. यस। आ जाएगा टी स्टार. हम्म। चलो जाओ, तैयार हो जाओ और भाग जाओ. मैं शाम को ठीक है पिंग सर। करूंगा करीब 6 बजे. लेट्स हैव अनदर क्लास. आई वांट टू कंप्लीट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग खत्म है एंड ना आई इसका विल मेक. चैप्टर ये? कौन सा? थर्मल प्रॉपर्टीज या और भी चलेगा ये? है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रह गया ना. नहीं उसका खत्म है या फिर और भी चलना है खत्म ये? खत्म 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 खत्म. ठीक है। 6 बजे के करीब मिलते हैं फिर से. लेट दिस मंकी बी ऑफ अवर बैक नाउ. बहुत लंबा खिंच गया ये. ठीक है, 6 o'clock. आवाज नहीं आ रही यार, नेट खराब हो गया क्या? हेलो 6 बजे. भाई आवाज नहीं आ रही. हेलो रोहित, आपके पास 10 मिनट है? हाँ जी बताइए. मैंने कहा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, चल भाग हाँ यहाँ जी. से। और बताओ कैसा चल रहा ऑल गुड. मजे में. आप बताइए. है? वेदर तो बहुत ही खराब हो रखा है इस बार। हाँ नहीं, मैं एक्सरसाइज के लिए निकल जाता हूँ इस टाइम पे, तो मुझे भी अच्छा। खास ठंड लगती नहीं है. हाँ हाँ, तो स्पेंड अराउंड. बताइए. अच्छा, बस आपसे पूछ रही थी क्या कर रहा है ये बेवकूफ हमारा। नहीं नहीं, इज डूइंग गुड. बढ़िया कर रहा है. बस इसको मैंने बोल दिया कि ये जो पिछला सिलेबस है उसको रिवाइज कर ले. पूरा सिलेबस करना अलग होता है, और एक एक चैप्टर, तीन तीन चैप्टर का एग्जाम देना अलग होता है. सो यू शुड बी हैविंग अ प्लान टू रिवाइज द कोर्स एंड स्टार्ट गिविंग टेस्ट. मैथ्स का हाँ, तो हम काफी टाइम पहले कर चुके हैं, क्योंकि काफी हैवी हो जाएगा वो. मैं भी इसको यही बोल रही थी कि पूरी बुक का देगा ना तो हाँ. प्री बोर्ड में भी फुल बुक के पेपर हुए थे, उसका बहुत फायदा हुआ था। यस. वो फटाफट रिवीजन भी हो जाती है एग्जाम हाँ में, जी. हाँ जी. हाँ जी. हाँ और जी. पता भी चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। यस. वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो है। तो अब फिजिक्स भी खत्म होने वाला है आई गेस। अभी टाइम है. द चैप्टर्स आर अच्छा। लॉन्ग एंड थोड़े से बचे हुए चैप्टर्स. थोड़ा टाइम अच्छा। लग जाएगा अभी. और मैं इसको जेई का भी साथ न्यूमेरिकल्स। साथ एक्सपोजर दे रहा हूँ तो. हाँ, न्यूमेरिकल तो अच्छे कर रहा था ये, अभी देख रही थी हाँ मैं। हाँ, ही डज इट. समझ में आ जाता है. ओनली थिंग इज, अब देखो, थोड़ा डाइजेस्ट करने में खुद एफर्ट करना पड़ता है अपने आप थोड़ा. उसको याद करने में सेल्फ स्टडी चाहिए वहाँ पे. हाँ वो तो है। यस. मैथ तो अच्छा कर लिया इसने, देखा मैंने, हाँ मैथ तो हाँ. नहीं, अच्छा। मैंने इसको बोला था जब कि मैं मैथ्स के पेपर भेजना शुरू कर रहा हूँ. मतलब इफ यू कैन डू 5-6 पेपर्स ऑफ मैथ्स, इट विल गिव यू अ गुड आइडिया वेयर यू स्टैंड. पता चल जाएगा. क्यों पूरा कोर्स करना, बहुत गलतियां होती हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं बच्चे. आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा. तो ये जेई के लिए क्या अभी अलग से बुक्स कुछ और भी करना पड़ेगा? मतलब कुछ अभी तो नहीं रह ही करना. रहा है ना। कुछ नहीं करना. इसके पास बहुत सारी बुक्स हैं और सब कुछ अवेलेबल है. कुछ नहीं करना होता है इसके लिए. सिर्फ वो जो होता है ना कि लगन चाहिए होती है, जो कि मैंने खत्म करना है. पिकअप एनी वन बुक. आपने भी खरीदी है, इसको दी हुई है, मैंने भी कुछ बताई हुई है. जस्ट डू देम एंड फिनिश, एंड दैट्स ऑल. कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. नॉट अ वर्ड. ठीक है। अभी मैंने ये तो देख रही हूँ कि आती हैं चीजें, थोड़ा सा पुश कर ले तो हाँ. 11th का बेनिफिट तो रहेगा ही अच्छे से बहुत करने बड़ा. का। बहुत बड़ा. बिग वन. बिग टाइम रहेगा. सिर्फ टच में रहना है, छोड़ना नहीं है, और रिवाइज करते रहना है उसको. अभी इसके दिमाग में ये है कि मैं तो जेई का तो शायद मुझे 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं इसको ही समझा रही कि ड्रॉप से कुछ नहीं होता, जो नहीं. करना होता है ना साथ साथ हो जाता है। हाँ. और ड्रॉप कर दिया तो मोमेंटम टूट जाएगा आपका. और वो लोग जो करते हैं ना ड्रॉप, उनसे वो ड्रॉप करके भी नहीं होता, और जिन्हें हाँ करना होता है ना वो फर्स्ट गो में कर लेते हैं। हाँ हाँ. ये भी कर सकता है, बहुत आराम से कर लेगा. आई एम गिविंग हिम कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू दोस क्वेश्चंस. सीइंग इज बिलीविंग. जब सामने दिख रहा है, कर भी पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट. ये समाउ डिफेंसिव अप्रोच है ना कि ड्रॉप करना पड़ेगा, पहले ही शोर मचा दो तो. हाँ, मैंने बोल दिया इसको, मैंने कहा तेरे पास तो वो चॉइस नहीं है कि तुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, जो हाँ करना है अभी कर ले। हाँ हाँ और हमने कोई ऐसे एग्जाम्पल देखे नहीं कि ड्रॉप करने वाले ने फर्स्ट रैंक ली। फर्स्ट रैंकर्स वो साथ साथ करके निकल जाते हैं। हाँ. हाँ नहीं, 11th में इतना पढ़ लिया तो फिर अब कोई रीजन नहीं है.
11 छूट जाती तो समझ में आता है कि दोनों क्लास करना मुश्किल है, बट 11 ठीक ठाक कर लिया है, रीजनेबल है। थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा बस, टच में रहे और करता रहे प्रैक्टिस अपने आप, तो कर लेगा बड़े आराम से। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको समझ में भी आ गया कि भाई एनसीईआरटी ही, और प्लस एक और एक्स्ट्रा किताब प्रैक्टिस के लिए ले लेगा तो पूरा पेपर ठीक करा जा सकता है वो। उसमें बस फोकस चाहिए बड़ा कि हाँ भाई मुझे करना है ये, दैट एटीट्यूड माइंडसेट हैज टू बी देयर, दैट इज ऑल इज नीडेड, ही डजंट नीड एनीथिंग एल्स, दिस अ माइंडसेट, ये करना है मुझे ये बस। वंस ही डिसाइड्स हाँ, इट, ये हो जाएगा। पर अभी भी उतनी उतनी अकल नहीं आई है, अभी भी सुपरविजन तो पूरी चाहिए इसको। नहीं, डिफेंसिव है बेसिकली, जस्ट डिफेंसिव इन इज, doesn't want to commit to it. So unless there is commitment, it's very difficult to clear that exam. मतलब दिल में कमिटमेंट चाहिए होती है कि हाँ मैंने करना है, वो बोलते हुए डरता क्यों है ये? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तो कमिटमेंट से ही होगा वो। वही एक स्टेप रह गया दिमाग में कि आई एम कमिटेड टू दिस पेपर एंड आई विल क्लियर इट। सो आई विल डू ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स, लाइक टेस्ट भी दूंगा मैं जेई के, और टेस्ट सीरीज भी करूंगा मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करूंगा। मैंने दिन में 2 घंटे बांध रखे हैं इसके, तो वो जो डिसिप्लिन होता है जेई का, बस वो कमिटमेंट से आएगा वो। बस ये स्कूल, स्कूल तो ऐसे ही है बस। फिर आप इसका स्कूल भी, आई होप यू आर डूइंग अ सर्च ऑन दैट। मैंने तो इसे बता हाँ, दिया था स्कूल। अच्छा आपने बताया है, मुझे इसने हाँ बताया नहीं। पर हाँ आप जी, हाँ मुझे जी, मैंने बता बता देना, दिया था। क्योंकि फिर हाँ मैं तो इसका ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा पुश करे और हाँ 11th में टॉप करके दिखाए, और जो कर सकता है, हाँ, जितना इसने अच्छे से 11th आराम स्टडी से, करी है, तो आराम से, आराम थोड़ा से, अपना बहुत ही नाम आराम। बना के निकल। इसको समझ ही नहीं आता, वही बोलती कोई हूँ एक, कि नाम भी होना चाहिए भाई, और वो बन जाता है थोड़ा सा हाँ एफर्ट हाँ, डाल के। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम, समझदार है मतलब। इस बार तो मतलब आपने थोड़ा सुपरविजन में इसको करा लिया, तो ये तो मुझे दिखने लगा कि पढ़ा है पूरे साल, आती है हम्म। चीजें। हाँ वो फोबिया तो नहीं है, पर बस हाँ वही है, मेच्योरिटी पता नहीं कब हाँ, आएगी। कमिटमेंट, that I'm committed to this and I will not be lazy. I will sacrifice my comfort. I will sacrifice my many things and I will just clear it. यही साल है मेक और ब्रेक का, इससे मेरा करियर बनता है और एक ट्रैक पे आ जाऊंगा मैं। तो वो जो है भाई, हम हमारे टाइम पे तो और कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास, वी नो रिसोर्सेज नथिंग, सो वी हैड टू डू इट। somehow this mindset has come in, I will drop, I will do this that, कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड नथिंग एल्स। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना इतना लंबा चौड़ा, कमिटमेंट चाहिए कि मैं रोज आऊंगा, ये मैंने चैप्टर का रिवीजन कर लिया, मेरी किताब खत्म है, बस खत्म। ही हैज एम्पल बुक्स नाउ। हाँ, अब आप ना इसको टेस्ट भेजो, मैं इसको बिठाऊंगी और हाँ, कराऊंगी। मैंने स्कूल इसको तो मैं फिजिक्स इसको का कम पिछले ही पेपर का टेस्ट भेजा है, इसने मुझे भेजा बोला है था आपने। भेज दो। हाँ भेजा है, ये बोलता है फिर करता तो है नहीं है। नहीं, मैं और इसको आज बिठाती हूँ, इसको टेस्ट कराती हूँ। मैंने इसको बोला है अब तू अपना पूरी एनर्जी टेस्ट देने में लगा, और हाँ जी, जितनी तू गलतियां करेगा वही तुझे हेल्प करेंगी। हाँ हाँ चीजें हाँ हाँ, अभी भी जो याद भी इसके वही नंबर रहती कम आए हैं। अभी पिछले पेपरों में छोटे छोटे, इसकी कमिटमेंट ही नहीं थी। ये उनको बोलता है काउंट नहीं होते, ये टेस्ट हाँ, काउंट नहीं बेवकूफ होंगे, है ये। ये क्या काउंट नहीं होते भाई? तुम्हारे जेई में तुम्हारी नॉलेज गैदर हो रही है, तुम स्कूल के लिए पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम स्कूल को क्या दोगे? स्कूल विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तुमने पढ़ना था कि जो क्वेश्चन है मेरे को आना चाहिए क्योंकि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, खत्म। अब वो क्वेश्चन पेपर कोई भी बनाए मुझे आना चाहिए, आई शुड नो हाउ टू डू इट। इफ आई डोंट नो आई विल गो एंड क्रॉस चेक कि कहाँ गलती हुई है। तो वही डिफेंसिव मैथ तो अप्रोच है। इसको पूरा पेपर आता था। मैथ मुझे में तो मालूम है। इसने हवाबाजी करी कि मुझे सबसे पहले करना है, और वो हम्म, बेवकूफियों वाली गलतियां करके आया। हाँ आ, आती भी चीजें गलत करके आया है। हाँ, इस नरेटिव वॉज मैंने 2 घंटे पहले खत्म कर लिया, मैंने 1 घंटे पहले कर लिया, तो क्या हो गया फिर? इसका अब पेपर वो, तो मैथ वाला अब मैं भी चेक नहीं कर पाती। पता नहीं कौन से फंडे लगा देता है। अपनी मैम को भी जाके गोली दे आता है, मैडम आप तो गलत तरीके से कर रहे हो, देखो मैंने 2 स्टेप में कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुमने चीजें अब थोड़ी एक्सप्लोर करनी सीख ली और थोड़ा माइंड हाँ चलाना शुरू कर लिया, पर अब थोड़ा सा सुपरविजन हटवा दो हमारी, हम कितना सुपरवाइज करेंगे। हाँ, इट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो ही हैज टू, मैं आपको एक मैथ्स का पेपर भेज दूंगा मैं, पूरे साल का।
मैथ्स का आप फुल भेजो, पेपर। मैं तो अब फुल बुक की, मैं तो इसको खुद कह रही हूँ, तू पूरी बुक दे, चाहे तू 10 नंबर लेके आ, पर हाँ तू पूरी बुक के साथ हाँ चलना जी, शुरू कर ले, और वो वही फायदा तरीका भी है होगा। प्रिपरेशन का। हाँ, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि ये थोड़े से दिन रह गए हैं तो करवा दो। अब करवा दो, क्या करवा दें भाई, जो तुमने नहीं, स्टेप ही नहीं लिए। अभी तो 10 बार हो जाना चाहिए सब सब्जेक्ट की हाँ टेस्ट। हाँ, यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई, नॉट फॉर स्कूल, सिंपल सा है। दैट शुड बी द अप्रोच। मैं आपको पेपर भेज दूंगा मैथ्स का, और जैसे ही हमारा ठीक है, फिजिक्स खत्म होता है तो फिजिक्स के भी भेजना शुरू कर दूंगा। ठीक है, एंड आप भेज दो, मैं इसको करवाओ। करा लूंगी। स्कूल तो मैं हाँ इसको अब 1-2 दिन ही भेजूंगी, क्योंकि हाँ जी, हाँ अटेंडेंस जी, भी इसकी 87% है, तो ठीक कोई है। टेंशन नहीं है। हाँ और अब तो मैं उसको यही बोल रही हूँ, बस बुक पढ़ और दे, और चाहे तू 10 नंबर लेके आ, चाहे तू 20 नंबर ले, यस। ऐसी तैयारी होगी, और कोई हाँ तरीका नहीं है। हाँ हाँ, इट विल गिव हिम अ गुड पुश कि कौन कौन से टॉपिक भूल गए हैं मेरे को, विच वंस आई कैन हेल्प हिम रिवाइज देम। कोई प्रॉब्लम फिर से आ रही है, कर सकते हैं, तो पता नहीं चलता। हाँ, वो तो है। और हाँ, आप आते नहीं हो गुड़गांव रोहित? आओ किस दिन घर मैं पे। आया था एक्चुअली, यहाँ तक आता हूँ, सेक्टर 29 तक आता हूँ मैं। और सेक्टर 29 आया था एक बार मैं वहाँ आपके, आपको मुझे सेक्टर नहीं पता, यू आर इन 63 राइट, 60। हाँ, 63, मैं आया था 63। वहाँ AIPL ऑटो, वो एक मॉल है वहाँ पे, वो M3M की बिल्डिंग है सामने, तो आ AIPL जाते आप, ऑटोग्राफ। वहां से 10 किलोमीटर ही होगा हमारा, 8-10 किलोमीटर अच्छा हार्डली। अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज आई आई ऑल्सो गो टू सोना फ्रॉम देयर, वो बादशाहपुर रोड का ऊपर जो फ्लाईओवर है ना, हाँ, वहां तो से। उधर ही तो, उधर से तो और पास में था, 3-4 किलोमीटर ही था। अच्छा 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 अच्छा, ओके। मैं लल कम समडे विद माय वाइफ, अपनी वाइफ के साथ आ जाऊंगा मैं, कम हाँ, घूमते रहते आओ, हैं। आप लंच करेंगे एक साथ, हाँ और जरूर। थोड़ा इन थैंक यू। पर्सन मिलके थोड़े रिलेशन और अलग बनते हैं। हाँ जी जरूर, मुझे डेफिनेटली। कह रहा कि मेरे सर की वाइफ होम्योपैथिक डॉक्टर है, हाँ, तो हम लोग ना इसको बचपन से ही होम्योपैथिक ही देते हैं। ये ना अच्छा। चाइल्डहुड में ना काफी एलर्जिक था, इसको थ्रॉट हाँ, इन्फेक्शन हो जाता था। मेरे अच्छा अच्छा हस्बैंड अच्छा। कहते ठीक है फिर, अब तेरे सर की जो वाइफ है उनसे ही तेरी ट्रीटमेंट शुरू करा ये देंगे मेरे जो। बेटे को सेम प्रॉब्लम थी, हमने तो कभी उसको एलोपैथी दी नहीं। और वो एलर्जिक होता है, वायरल होता है वो गले का, वो हाँ, लगता है वो बैक्टीरिया वाला, लेकिन होता नहीं है, तो हम तो मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है वो थोड़े दिनों में। तकलीफ हाँ, बहुत होती है बच्चों को। इसको भी नहीं दी हमने। इसके ना हाँ टॉन्सिल्स इतने बड़े बड़े थे कि ये हाँ स्वेलो भी नहीं कर पाता था। हाँ, पर सेम। होम्योपैथिक से ना वो फ्लैट हो गए, तो डॉक्टर भी हाँ खुश होता है। हाँ, बल्कि हम इंदिरापुरम जाते हैं यहाँ अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा, पर ओके। वो बचपन से ये ना, मतलब जब हम यहाँ आए थे 10 साल पहले, हाँ तो जी, हाँ वहीं जी। से ले रहे थे। पर ये शुरू से ही होम्योपैथिक पी रहा है तो इसको और अच्छा, कोई दिलाते ही नहीं हम। ओके, नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी। चलो ठीक है ठीक रोहित, है जी। थैंक यू हाँ जी, इसको मोस्ट थोड़ा वेलकम। फोकस हाँ रखने के लिए, थैंक यू हाँ सो हाँ, मच। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, मैं आपको पेपर भेज दूंगा, आप इससे पेपर कराते रहो बस। हाँ, मैं तो हमारी आपको ना आज एक फिजिक्स वाला क्लास भी है। करवाती हूँ। हाँ, वी ठीक हैव अ है। क्लास टुडे एट 6 PM अगेन, बिकॉज वी अच्छा, हैव टू कंप्लीट, तो आई होप ही इज अवेलेबल। नहीं नहीं, ही इज अवेलेबल। कई ठीक बार है। कहता है मेरा चैप्टर खत्म हो गया सर, मुझे घिसवा रहे हैं। मैंने कहा तू है इस लायक। ठीक है, मुझे लगता है कि टाइम है तो कुछ यूज कर लें उसका, बढ़िया, तो ठीक है। हाँ, फिर भूलेगा भी नहीं ना, और आपको भी हाँ, रहेगा कि मैंने अच्छे से करवा दिया। कहता है यस। नहीं, अब मैं घिस रहा हूँ। मैं कि तू इसी लायक है। हाँ, थोड़ा टायरिंग होता है वो, थोड़ा प्रोसेस। कोई बात नहीं, ठीक है, विल गेट यूज टू इट। चलिए हाँ। ठीक है, थैंक यू।